नमस्कार। ये एक पॉडकास्ट है जो कर्ट्स इंटरनेशनल के द्वारा फ्रंट ऑन पैक लेबलिंग पे आयोजित किया जा रहा है। मैं डॉक्टर सीमा मेहता फ्रॉम आईएचएमआर यूनिवर्सिटी जयपुर आप सभी का इस पॉडकास्ट के अंदर स्वागत करती हूँ। ये पॉडकास्ट मेरी दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है आज के संदर्भ में, क्योंकि इसमें हम अपने कंज्यूमर्स को अवेयर करना चाहते हैं कि फ्रंट ऑन पैक लेबलिंग क्या होती है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन के संदर्भ में, आज जबकि हम बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो आइए सुनते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर फ्रंट ऑन पैक लेबलिंग के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में वर्तमान संदर्भ में भारत के लिए। तो इस पॉडकास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्रंट ऑन पैक लेबलिंग जो है वो एक मेथड है आज कंज्यूमर की सेहत को प्रोटेक्ट करने का, और इसके बारे में कहाँ तक अभी तक भारत सरकार ने काफ़ी काम किया है। लेकिन उससे पहले वी नीड टू नो व्हाई देयर इज़ अ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। Now, if you look at today, we all understand that health is a very important part of our life. It is said that the health is one factor which connects human body with the all other indicators. If the human body is healthy, we will keep working for this country and we will produce good results for this country. So health is very important. Now, these days with the human health and with the economic aspect, with social aspect, what is the intermediating variable is very important is our eating habits. We all have started eating food which is very unhealthy, and it is now a common pattern. If you look at what kind of food we have started eating, we have started eating more of processed food. How do you call it processed food? A processed food is a food which is available. Initially, the food comes from the agriculture, then it is processed by industry and manufacturing, it is packed, and that is how it is known as processed food. We are now habitual of eating all kind of pre-packaged food, or we call it as processed food, which are coming in packaging. Now, why they are a concern is because these packaged foods are sometime, because to increase their higher shelf life, to increase the taste, these processed foods contain a lot of salt, sugar, saturated fat, and trans fat. Important is, since they are having high or salt, high sugar, high trans fat, it is very unhealthy to eat. But on the same side, there is an emerging trend for the Indian diet. What is that emerging trend is that we have started eating these kind of processed food. Like for example, we eat sugar coated beverages, wafers, noodles, we eat, biscuits, many things. So this is a semi-processed food industry. You will find a very surprising trend that Indians have started eating just double the eating of these kind of packet foods. At least 38% of the Indian on an average actually eats unhealthy food, and in India we are facing the problem of malnourished children also. Nearly 17% of the Indian population regularly consumes the food which is short of dietary energy levels, or we may call it as nutrition, because when we are eating food and if we want to remain healthy, the food should contain nutritious food. Now there is an important thing: we eat processed food, our children are also eating processed food, and these processed foods are actually not giving you an idea about what kind of nutrition should be required, what is the optimal quantity in which you are supposed to eat it. If you look at this, India is very serious about it. Why it is serious about it is what are the breakfast we are consuming when we are going outside in the shopping malls, what kind of junk food we are consuming. You will find regularly leading newspapers are covering and creating a awareness about it. What awareness is? If you look at some of the articles which talks about that Indian diet is changing and it is threatening and moving towards a thing called non-communicable diseases. Very recently, you will find out that most of the leading newspaper has talked about the dietary risk which leads to the overweight, which leads to the non-communicable diseases like cardiovascular disease, cancer, like stroke. There is a very recent study which I wanted to talk about, is that it is published by Lancet, one of the very leading journal in the world. It is a study which talks about that because of the stroke and cardiovascular diseases in India, there will be a high mortality rate. And they talk about 4 reasons for this, why we are having more non-communicable diseases. First reason is alcohol, tobacco. Second reason, third reason is our physical inactivity. And the fourth most important reason
they have pointed out is our eating habits, and which is again processed food, semi-processed food. So if you look at this, why we are eating a lot of semi-processed food is because the food and beverage industry in India is growing rapidly, and a whole lot of market is available in the small packets. Many snacks are available which people are eating anyway every day. Then there is an absence of policy, a strong policy which actually taking into consideration all key stakeholder जो भी हैं, गवर्नमेंट है, फूड इंडस्ट्री है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, कंज्यूमर सोसाइटीज हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, they all should be there, and there is a regulation, but it is right now missing. The third reason is there is online food platforms are there where people are continuously ordering the food without consideration that what is the nutrition level of the food. And the fourth is there is no restrictions on the marketing practices. Suppose we see advertisement on television, okay, this is a very good snacks, and this is very good, it is very juicy, it is very salty, it is very crispy, it is very tasty. We keep on eating it without understanding how many packet of chips we are eating. Is it, what is the requirement, what is the minimum which we can eat? So these are the things, and this is processed food. So now it is highly unhealthy in nature, and why people are eating is maybe a packet is available in 10 rupees, 20 rupees, 5 rupees. So there is no income associated with, income pattern associated with it. People can buy it very easily as it is available. Now let's understand, since there is a shift towards eating this kind of junk food, semi-processed food, packaged food, this is giving a very alarming challenge to public health. Now, when everybody understands public health is health for all people in this country, it is all about community. So if we keep on eating, the outcome of this is we will suffer from more diseases, our body will not remain healthy, we will mentally, spiritually, and physically will not be a fit soul. And this is why now in 2018, government has taken a very conscious call of working on these and started redrafting a policy for the food which we are, semi-processed food which we are eating, in terms of nutrition labeling and in terms of what to display on nutrition labeling. So government has taken a very good call, and we all need to understand, because this is a public health concern. Let's understand how there is alarming risk. If you will look into the certain studies which has been done by various journals, you will be able to find out that ultra processed food has given us a very alarming signal in terms of during the COVID time. In COVID time, you will find those people who were having the obesity, having poor eating habits, were having higher mortality and morbidity. Those people who were suffering from any kind of comorbidity was having higher propensity for dying. In India, we say that India is going to become a diabetic capital. All you will find during the COVID time and currently also, there is a reason behind it, and the reason is our eating habits, which are unhealthy, and we don't see packs while we are eating that what is written on that pack, whether it is nutrition or not. And there is an unhealthy retail food environment in India. You will find unorganized sector retail is also there, organized sector retail model is there, ठेला वाला भी हैं, हम किसी से भी जाके कुछ भी खा लेते हैं, ये देखे बगैर कि ये इसके अंदर क्या न्यूट्रिशन है, कितना परसेंटेज में है, सॉल्ट ज़्यादा तो नहीं है, शुगर कम तो नहीं है, कुछ भी हम खा रहे हैं बगैर ये देखे, उसके पैक पे देखे कि भाई ये क्या है। अब अंडरस्टैंडिंग ये है कि पैक पे कहाँ लिखा है कि ये क्या है। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि पैक पे, बैक ऑफ द पैक लिखा है। लगभग सभी कंट्रियों ने ये फैसला किया कि बैक ऑफ द पैक ऐसा होना चाहिए, बट अगेन ये भी एक होता है कंपलसरी, एक होता है वॉलंटरी। तो कई कंट्रियों में इसमें वॉलंटरली है, कई कंट्रियों में इसमें कंपलसरी। तो कंपलसरी में वो ये तो लिख देते हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव न्यूट्रिएंट इन इट, बट देयर इज अ कंसिडरेशन अबाउट कि उसके अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट भी है जो पॉजिटिव तो है लेकिन उसकी बियॉन्ड अ परमिसेबल लिमिट है, तो उसके बारे में कोई बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगेन आप रिसेंटली, बहुत रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक डाइटरी गाइडलाइंस डाली और उसमें उन्होंने ये वार्निंग दी कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन द पैकेज फूड
Sometime it can be misleading. How it can be misleading is, आजकल बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं, उसमें ये लिखा होता है इसमें 20% एनर्जी है, इसमें 10% प्रोटीन एक्स्ट्रा है, इट इज प्रोटीन पाउडर्स हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाउडर्स एंड दे क्लेम दैट दे हैव अ होल लॉट ऑफ प्रोटीन एंड ऑल दोज थिंग्स. तो इंडियन काउंसिल ने ये डाइटरी गाइडलाइंस में कंज्यूमर्स को ये कहा कि वो पहले इंफॉर्मेशन को पढ़ें. पढ़ने के बाद वो एक इन्फॉर्म्ड और हेल्दी फूड चॉइस करें, ना कि जो भी बाजार में मिल रहा है उसको जाके खरीद लें. क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो हेल्दी प्रोडक्ट को क्लेम कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट हेल्दी हो. तो कैसे कंज्यूमर अवेयर होगा कि ये प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है? उसको ये लिख के कहीं लिख के मिला होना चाहिए कि भाई ये इस प्रोडक्ट के कंटेंट है. पहले पढ़ो और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड चॉइस करो कि भाई ये हमें लेना है कि नहीं लेना है. उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रोडक्ट्स विच आर हाई ऑन फैट, हाई ऑन शुगर एंड सॉल्ट, हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहता है सॉल्ट और शुगर कम करिए. तो लेकिन कंज्यूमर को कैसे पता पड़े जब वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खरीद रहा है, कोई चिप्स का पैकेट खरीद रहा है, कोई नमकीन खरीद रहा है, कोई बेवरेजेस खरीद रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है, तो उसको कैसे पता हो कि उसके अंदर कितना शुगर का कंटेंट है, कितनी परमिसेबल लिमिट है. और कई बार क्या है कि हमने एक कैन लिया, हमने दूसरा भी पी लिया कोल्ड ड्रिंक का, तो वो तो परमिसेबल लिमिट से ऑलरेडी ऊपर हो गया. तो आईसीएमआर ने कहा कि बेसिक एविडेंस सजेस्ट करता है कि पुअर क्वालिटी डाइट जो है वो लीडिंग कॉज है फॉर डिजीज वर्ल्ड वाइड. एटलीस्ट 5 lives could be saved by improving the 1 out of 5 lives could be saved by improving the diet. So आईसीएमआर की इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फूड बिहेवियर को चेंज करने का क्या मैकेनिज्म है? ऑलरेडी कई मैकेनिज्म्स हैं, बट एक नया और बेहतर मैकेनिज्म भी अब अवेलेबल है. मैं आपको अब उसके बारे में बताती हूँ. तो व्हाट इज दैट मैकेनिज्म इज, दिस इज फ्रंट ऑन पैक लेबलिंग. Now, whenever we buy a product, you will find in that product, on the back side of the product, you will find certain information is given to you. We call it as certain information is given to you. We call it as BOP, back on pack labeling. Now, if you are buying the product, and on the front side also, this is a new intervention which all the government in the world wants to do it. क्या पॉसिबल तरीका है? ऑन द फ्रंट साइड ऑल्सो वी कैन डू न्यूट्रिशनल लेबलिंग थ्रू फ्रंट साइड ऑफ द पैकेज ऑल्सो. वी कॉल इट एज फ्रंट ऑन package labeling. Now, what is this front on pack labeling is very seriously taken by government. Why? Because when we buy the product, when you see the back end side of the product, sometimes it is not visible. People pick up the product from the front and take a chips and start eating. So front on pack labeling is a very forthcoming intervention. इसके ऊपर काफ़ी देशों में काफ़ी समय से बहुत बातचीत हुई है, और उसके बेस पर सारे एग्री करते हैं कि फ्रंट ऑन पैक लेबलिंग होनी चाहिए. पैक के फ्रंट पे कुछ ना कुछ तरीके से हमें कंज्यूमर को ये बताना ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट के अंदर इतना सॉल्ट है, इतनी शुगर है, इतनी एनर्जी है, इतना फैट है, ताकि कि वो लेते वक्त अवेयर हो जाए. नाउ ये क्या है? नाउ इट इज़ अ सिंप्लीफाइड न्यूट्रिशनल लेबलिंग सिस्टम. हम बता रहे हैं उसको कि इसके अंदर ये न्यूट्रिशन है, फ्रंट साइड पे बता रहे हैं. और हम किस तरह से बता सकते हैं? देयर आर मेथड्स टू शो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल सी, we can show this through a color method. For example, we can show red color for a particular color coding method, red color for a particular nutrient. We can show for a particular front end side of the product through warning label also कि इसमें high on fat है क्या, high on salt है क्या, high on sugar है क्या, permissible limit से ऊपर है क्या. तो हम warning label भी बना सकते हैं. हमारे पास एक ऑप्शन और भी है ग्रेडेड लेबल्स का, जिसमें हम उन्हें ABCD ग्रेडिंग दे सकते हैं बेस्ड ऑन कैसा न्यूट्रिशन कंटेंट उनके पास है, इस प्रोडक्ट के अंदर है. हम टेक्स्ट से लिख के भी बता सकते हैं, एंड एज वेल एज कुछ सिंबल्स भी बना सकते हैं. नाउ इसमें मुझे बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं इसके, जिनको ये डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानकारी है, बट काफ़ी कन्फ्यूज़न है. जैसे एक स्टेक होल्डर इंडस्ट्री है, वो जो कि ये सेमी प्रोसेस फूड, चिप्स वगैरह और मैनी अदर थिंग्स, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बनाते हैं. उनको लगता है कि ये जो लेबलिंग सिस्टम है वो कैसे हमें लेना है,
उसमें कौन-सा हमें लेना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे राउंड भारत सरकार ने इसके ऊपर करके बहुत सारे रिसर्च भी करवाई हैं। अलग कंट्रीज़ में भी बहुत रिसर्च हुई है, डब्ल्यूएचओ का भी इसमें काफ़ी काम है कि एक ऐसा होना चाहिए ये लेबलिंग सिस्टम जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंज़्यूमर को एम्पावर करे कि उसको उस पैकेट में समझ में आए कि ये किस तरह की न्यूट्रिशनल लेबलिंग है और इसमें उसको बिल्कुल ठीक से समझ आए कि ये प्रोडक्ट मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए और इसके अंदर ये इंग्रीडिएंट है। तो अगेन अगर हम कंज़्यूमर को एम्पावर कर देंगे, अवेयर कर देंगे, तो वो अपनी डाइट का ध्यान रखेगा, स्पेशली पोस्ट कोविड लोग रखने भी लगे। अब इसको अपने को इंक्रीज़ करना है बस और ताकि हम ये एनसीडी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूट्रिशनल अच्छा खाना खाने की वजह से जो ये समस्या है, उसे हम कम कर सकें। अब ऑप्शन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर हाल-फिलहाल एक ड्राफ्ट है। अब इसको हमें एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के तौर पर लाना है ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व्ड है, वो फ्रंट पैक पे ये लिखे। ना इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल जो मैंने आपको बोले कि हम कैसे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक लेबल्स बता सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा यहाँ लिखा है एनर्जी, शुगर, फैट कितना है इस प्रोडक्ट में। सेकंड इज़ वी कैन कलर कोड देम कि व्हिच पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज़ हाई इन दिस प्रोडक्ट। हाई कौन-सा है, लो कौन-सा है। आप लो को ग्रीन से दिखा रहे हैं, हाई को रेड से दिखा रहे हैं। द थर्ड मेथड इज़ जिसमें एक वार्निंग साइन लगा दिया कि भई दिस इज़ हाई ऑन कैलोरी। आपको खाना है, आपकी मर्ज़ी है और नहीं खाना है तो आपकी मर्ज़ी है, बट एक वार्निंग लेबल है जिससे आप तय कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अनहेल्दी है, खाना है तो आपकी चॉइस। चौथा जो मेथड है वो स्केल बेस्ड है, जिसमें बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट उस पैकेट के अंदर है, उनकी एक स्कोर दे दी जाती है कि इसका टोटल न्यूट्री स्कोर कितना है और उस हिसाब से आप कर सकते हैं कि ए, बी, सी, डी डिफरेंट न्यूट्रिशनल स्कोर है। फिफ्थ इज़ एक लोगो है। लोगो इज़ आई होप यू कैन सी यहाँ पर लिखा है इट इज़ हेल्दी चॉइस और नॉट अ हेल्दी चॉइस। सो ये लोगो भी अवेलेबल हो सकता है और लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप है जो आफ्टर रिसर्च मोर देन 100 कंट्रीज़ इसके ऊपर काम कर रही हैं कि वो कैसे अपनी कम्युनिटी को इस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अच्छा खाने की तरफ ले जाएँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम फ्रंट पे एक कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जो है उसको सिंपल इन्फॉर्मेशन में फ्रंट ऑन पैक लेवल पे दे सकते हैं। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं जनरली हमारे प्रोडक्ट के पीछे ये इस तरह से लिखे रहते हैं। Now, this is not very easy to understand, especially in Indian consumer. अगर आप socio demographic profile देखें, cultural profile of Indian consumers देखें, तो it is very complex. Most of them are not, you may not call them as a literate person in terms of understanding this information because, for example, if it is written the sodium is this. नाउ वी नॉर्मली इंडियन कंज्यूमर समझता नहीं है कि अच्छा इसमें सोडियम है, सॉल्ट का हम बोल रहे हैं। तो बहुत सारे इसमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स वे है रिप्रेजेंटेशन का, तो उसको ईज़ी करने का जो मकसद है वो एफओपीएल के थ्रू सॉल्व हो सकता है। और कंज्यूमर को वो इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, एक हमारी लोकल लैंग्वेज भी होती है जो उस डायलेक्ट की होती है, प्लस हम सब की अवेयरनेस लेवल भी अलग-अलग होती है। हमारे काफ़ी सारी तरह के पैक्ड फूड्स होते हैं, तो उस तरह से इस कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ईज़ी करने का प्रोसेस ही एफओपीएल होगा। अगेन हाउ वी कैन डू इट हाउ वी कैन डू इट अब हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें फ्रंट ऑन पैक लेबल को एक एक पॉलिसी के फॉर्म में लाना है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि ये इस अगर हम लाते हैं तो लोग एक इन्फॉर्म्ड हेल्थ चॉइस लेंगे, जो कि हेल्दी फूड का चॉइस ले सकते हैं, जो कि उनके लिए सेफ है, जो उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ से बचा सकता है। हमें इंडियन मार्केट को ये अवेयर करना है कि भई जब आप खा रहे हो, कोई भी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो और उसके अंदर HFSS हाई ऑन फैट, हाई ऑन सॉल्ट एंड हाई ऑन शुगर है अगर वो फूड, तो आपके पास एक चॉइस हो कि नहीं भई मुझे ये नहीं खाना, मुझे इसकी जगह हेल्दी फूड खाना है। क्योंकि इसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इस कंट्री के ऊपर हैं एंड हेल्दी नेशन इज़ हेल्दी आउटपुट देता है। तो अब हमें अगर फ्रंट ऑन पैक लेबल को लाना है तो हमारे को इसको एक स्ट्रिक्ट
सारे स्टेक होल्डर्स को साथ मिलके इसको इम्प्लीमेंट करने की एक पहले तो ड्राफ्ट फाइनल हुआ और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फॉर बिल्डिंग अ हेल्दी नेशन, इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको इन सबको एक साथ साथ में आना है, वो कौन-कौन है? क्योंकि जभी भी हम कोई बनाते हैं कोई पॉलिसी और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो कर तब सकते हैं जब सारे स्टेक होल्डर ऑन वन बोर्ड आ जाएँ और कहें कि नहीं, अब कोई भी चाहे फूड इंडस्ट्री हो, चाहे एफएसएसआई हो, चाहे कंज्यूमर्स हों, चाहे पब्लिक हेल्थ के प्रोफेशनल्स हों, क्योंकि इसमें हेल्थ का भी रोल है, चाहे जनरल ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हों, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना रहेगा और फिर सबको अपना-अपना रोल प्ले करना रहेगा, सो दैट हर आम आदमी भारत का अवेयर हो जाए दैट दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। और कैसे? इसको लॉ अबाइड करना पड़ेगा। अगर लॉ अबाइड नहीं करेंगे तो हमारे बाज़ारों में तो बहुत अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस भी चलती हैं, काउंटरफिट प्रोडक्ट भी चलते हैं, जो पैकेजिंग में हम गाँवों में जाएँगे तो आपको मिलेंगे काफ़ी सारे ₹10, ₹12, ₹15, ₹20 तक के हैं, जिनमें सब कुछ कुछ लिखा भी नहीं है, लोग खा भी रहे हैं। तो कैसे हम इसे करेंगे? तो इसमें ये सारे स्टेक होल्डर हैं जिनका रोल है। जो पहला है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात है गवर्नमेंट की कि वी हैव टू रेगुलर एक एस्टेब्लिश और वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और रेगुलेशंस विद वेरी ट्रांसपेरेंट अप्रोच कि ओके, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट नीड्स टू बी फाइनलाइज्ड, और वो सबके कंसेंसस से आना चाहिए। अब इसमें सबको भी पता है, जितने स्टेक होल्डर हैं उनके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। जैसे इंडस्ट्री के अंदर कन्फ्यूजन है कि अगर हम वार्निंग लेबल यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, कंज्यूमर फ्रेंडली, हमारा मार्केट अफेक्ट होगा। स्मॉल पैक साइज़ पे फ्रंट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक हेल्थ वालों का कंसर्न है कि उसमें आपको हाई ऑन फैट, सॉल्ट एंड शुगर के ऊपर बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, एफओपीएल न्यूट्रिशनल कंटेंट की ही इन्फॉर्मेशन है। तो उसको हमें एनसीडी से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, लोगों को नमक खाना कम करना है, लोगों को शक्कर खानी कम करनी है, उसमें ये आना चाहिए। ओके, कंज़्यूमर का सबसे बड़ा कंसर्न है कि कंज़्यूमर को वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। हमारा कंज़्यूमर तो जाके उठा के और खा रहा है, पहले तो वो पढ़े और फिर खाए, और ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, पढ़ते वक़्त चश्मा ना लगाना पड़े कि हाँ, आप चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है इसमें लिखा क्या है। ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, और उनके साथ क्या हम कोई सिंबल, लोगो, डिज़ाइन या कोई रैंकिंग के तरीके से उनको समझा सकते हैं? कौन-सा, जैसे 4-5 मेथड है। ड बहुत सारे लोगों ने, डब्ल्यूएचओ ने अपने मेथड बताया, बहुत सारे कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपने-अपने मेथड सजेस्ट किए। जैसे चिली एक गवर्नमेंट है, उन्होंने इसमें वार्निंग लेबल यूज़ किए। कोई और गवर्नमेंट ने अपने यहाँ किसी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी अलग तरह का लेबलिंग सिस्टम यूज़ किया। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कौन-सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है, जो उनको ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा और एज़ वेल एज़ उनको हेल्प करेगा एक इन्फॉर्म्ड डाइटरी चॉइस लेने के लिए। अब अगर आप देखें तो तीसरा रोल इसमें बहुत बड़ा फूड इंडस्ट्री का है। फूड इंडस्ट्री का रोल इसलिए क्योंकि इफ द पॉलिसी कम्स, first of all, the timely it should be coming. It is high time now, it should be there in the market. And the second is this, with the disclosure of nutritional information on the front end side, and they have to strictly implement it. Once it is strictly implemented, then I think slowly people will get aware about it, and all of at least 5-10% change we can always notice. Third stakeholder hai policy formulation stakeholders. Now if we are making a policy, still there are doubts कि भाई कौन सी लेनी चाहिए, सिंबल वाली, ये वाली, कौन से मेथड है, तो हम कुछ एक्सपर्ट्स को रोप इन करके खूब सारे उनसे ओपिनियन ले सकते हैं इस पे कि और क्या इसमें बेटर करें, न्यूट्रिशन वाले को, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को, तो वो हम कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड हो, स्ट्रॉन्ग रिसर्च के ऊपर बेस्ड हो कि ये सिस्टम सबसे बेस्ट है। कलर कोडिंग का या वार्निंग का कौन सा सिस्टम है जो सबसे बेस्ट है। फिर हमारे लिए सबसे बड़ा रोल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी है। देयर आर लॉट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं कट्स के लिए ये कर रही हूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका बहुत बड़ा रोल है टू लॉन्च दी अवेयरनेस कैंपेन।
if you will make Indian consumers aware about it, that what you are eating should be healthy and it should not be high on saturated fat, trans fat, salt and sugar, probably they can make a big difference, because an educated customer builds a system in the country. Because when they become educated, they ask for good products, which are good food products, and once they ask, then nothing can stop obviously there will be good restrictions coming, कंपनीज विल बी अवेयर ऑफ इट, बिकॉज बाजार में तो वही चलेगा जो कंज्यूमर चाहता है. तो सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कर्ट्स या पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जो इस एरिया में काम करें उनका है, कि उनको पब्लिक को अवेयर करना है थ्रू कैंपेन्स. बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं उसके जिसके थ्रू वो ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये पॉडकास्ट है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर बहुत सारे सेमिनार हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, पब्लिक हेल्थ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कैंटीन है, वहाँ बच्चों को हम अवेयर कर सकते हैं. हायर एजुकेशन में स्कूल कैंटीन्स में इसके ऊपर बात कर सकते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन आर मोस्टली अफेक्टेड बाय जंक फूड. एंड देन the regulatory authorities like FSSAI also and other authorities has a role to play, because they have to continuously monitor whether it is strictly implemented or not. Regular monitoring and evaluation, concurrent monitoring and evaluation is important, because if they will have concurrent monitoring, they will have a scientific data that whether in Indian market packaged food is supplied is healthy or not healthy. Is it nutritional oriented or not? Is it that somebody is claiming a false thing that my packaged food is high on nutrition but it is not high on nutrition? So in order to find out, अभी इंडियन मार्केट में काफ़ी ऐसा है कि कई प्रोडक्ट क्लेम कर रहे हैं दे आर हेल्दी, बट व्हेन इट कम्स टू आप रोज न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें ये आता है कि नहीं, दे आर नॉट हेल्दी, उनके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं. तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट. एंड नाउ लास्टली, क्योंकि हम ये पॉडकास्ट कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रोल अ कंज्यूमर हैज टू प्ले. मैं और आप जो कि खा रहे हैं टेस्ट के लिए, अवॉइडिंग हेल्थ, उनको क्या करना है? क्या हम फ्रंट ऑन पैक लेबलिंग केवल एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है जो आ जाएगी और इम्प्लीमेंट होगी तो हमें हेल्दी पैकेज फूड बाजार में मिलेगा, बट हमारा भी तो कोई रोल है उसके अंदर एज अ कंज्यूमर. तो व्हाट रोल वी हैव टू प्ले इज बेसिकली इज फर्स्ट we have to raise our voice with institution like CUTS to find out कि actually to tell government and to all other partners कि हमें एक packaged healthy food खाना है जिसके अंदर बिल्कुल clearly लिखा हो कि इसमें इतना salt है. अगर हमें दिन में आधा चम्मच salt खाना है और उसके अंदर अगर ऑलरेडी आधा चम्मच से ज़्यादा है तो मैंने उस पैकेट को अवॉइड करना है. तो मुझे ये कहने के लिए कंज्यूमर सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ हमें जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं पैकेज फूड के एगमेंट में, उनके अगेंस्ट हमें रेज वॉइस करनी चाहिए एज अ कंज्यूमर. ये हमारा पहला काम है. सेकेंड इज हमको सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करना चाहिए टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स. जो सेमी प्रोसेस फूड हम खा रहे हैं उसके बारे में अगर हमें लगता है कि इसमें परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा शुगर है, परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा सॉल्ट है, जैसे आईसीएमआर ने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बोला कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा है, आपको ध्यान रखना चाहिए. तो हमें भी अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू अगर हमें पता चल जाता है कि इस सेमी प्रोसेस फूड में ये प्रॉब्लम है, इस चिप्स के पैकेट में, इस बिवरेजेस में, इस कोल्ड ड्रिंक में, इस मान लीजिए कन्फेक्शनरी में, चॉकलेट में, मुझे लग रहा है कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा है और मुझे लग रहा है मैंने पढ़ के देखी है, तो हमको अपने ही कंटेम्प्रेरी कंज्यूमर्स को अवेयर कराना चाहिए. तीसरी बात है हमें एक हेल्दी इंटरेस्ट रखना है अपनी डाइट के लिए, कि जो हम खा रहे हैं वो अच्छा हो. उसके लिए हम खुद जब तक कॉन्शियस नहीं तब तक हम ये सब चीज़ें, चाहे फ्रंट पे क्या लिखा है, पैक के बैक पे क्या लिखा है, कवर नहीं करेंगे. तो हमें एक हेल्थ कॉन्शियस माइंडसेट रखने की ज़रूरत है. देन वी हैव टू को क्रिएट. हमें अगर इंडस्ट्री या एफएसएसआई जो भी हम जिनका हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री का बना हुआ खाते हैं, प्रोसेस्ड करा हुआ फूड खा रहे हैं, चाहे कौन सा, तो हमें अगर वो हमसे कोई एडवाइस मांगते हैं, उनकी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ वो कहते हैं आपको किस तरह का पसंद है, ये वो, अगर हम उनको और एफएसएसआई को अपने सजेशन और इनपुट दें तो एज अ कंज्यूमर ये भी हमारा रोल बनता है. अगेन हमें एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इसमें एग्जिबिट करना है. अगर हम रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और हम ईटिंग हैबिट्स में अगर हमारे बच्चे मांग रहे हैं कि भाई ये वाला दे दीजिए, तो हमारा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये है कि बी अ अवेयर कंज्यूमर. पहले पढ़िए,
देखिए और उसके बाद वो डिसीजन लीजिए। एंड लास्टली थोड़ा-सा हम अपने टेस्ट बड्स को भी चेंज कर सकते हैं। हमें अडैप्ट करना पड़ेगा एक हेल्दी टेस्टी हेल्दी फूड के लिए। तो उसमें हमारा जो टेस्ट है, उसकी तरफ जो प्रेफ़रेंस है, उसको चेंज करना पड़ेगा एंड इट इज़ वेरी वेल गोइंग ऑन इन इंडिया। जैसे अब हम आजकल रागी के डोसे खा रहे हैं या मेनी अदर थिंग्स खा रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। इन अ वे एज़ अ कंज्यूमर हमें फ्रंट ऑन पैक लेबल को लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैंपेन चलाना चाहिए सो दैट हमारे पास एक इन्फॉर्म्ड चॉइस हो व्हेन वी आर ईटिंग दिस पैकेज्ड फूड कि हम वो हेल्दी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। हमें ये पता लगे कि ये फैट, शुगर, सॉल्ट में इसमें कितना कंटेंट है, कितनी एनर्जी कंटेंट है और वो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, ईज़ी वे में पता लगे। सो इस पॉडकास्ट का मकसद आपको ये बताना है कि फ्रंट ऑन पैक लेबलिंग is should come, time has come because it is one of the finest way to promote public health by creating awareness among people on their eating habits. Thank you very much.